Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today, I'm here to talk about the further human resource again, the next topic of further human resource management, chapter number 13, A-level business studies. And the topic would be management by objective, MBO, topic number 5 for this chapter. The, the management by objective, MBO, concept is already studied in AS level chapter number 4, and in chapter number 4 the concept is given as establishing business objectives, and now the chapter number 13 the concept is given as a responsibility of HR department to implement the culture of the management by objective within the organization. It has the role of human resource HR department to work closely with the functional department, the production, accounting, and the marketing department. The role of HR department to implement the culture of management by objective in all other departments. So, what is the basic meaning of MBO, management by objective? Actually, it is a management process in which the managers coordinate and motivate by the people, the employees, by establishing an aim. First of all, the main aim is established, and that aim is divided into different objectives for different departments, divisions, and individuals. So the main root of management by objective is development of aim, dividing that aim into corporate objectives, departmental, divisional, and individual objective. As you know, like a diagram learned in AS level, first of all, aim has been declared, aim of a business. For example, in this picture, an example is given to the business aim is to maximize the value of shareholders, giving more and more value, more and more respect in terms of money, in terms of dividend. That further aim is divided into corporate objectives like the objective profitability, growth, corporate social responsibility, whatever. And that corporate objective is further divided into divisional, departmental, and individual targets or objectives. That is what we call the process of MBO. Again, we study the definition of MBO. It is a management process in which the business objectives, aims, and objectives are defined, and these objectives are coordinated and discussed with the people. And then these objectives are further divided into divisional, departmental, and individual objectives. How? How these objectives introduced to the employees, shared with the employees. HR department organize an induction training. MBO induction ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसीजर ये है कि जब एक एम्प्लॉई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाएगा तो जो सबसे पहली चीज़ उसको सिखाई जाएगी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द एम. सबसे पहली चीज़ उसको एम बताई जाएगी, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिविजनल डिपार्टमेंट, और फिर उसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग में ये डायग्राम जो है वो उसको शो की जाएगी. ये है बेसिकली एमबीओ का मेन मकसद और मेन पर्पस. दो अप्रोचेज हैं जो फॉलो की जाती हैं, एमबीओ एंड इम्पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एमबीओ ये है जिस तरह के लिखा नज़र आ रहा है, द प्रोसेस शुड बी अंडरटेकन आफ्टर डिस्कशन एंड एग्रीमेंट ऑफ aims and objective with the people at each level.
दूसरा जो इम्पोजिशन बताया गया वो इम्पोज किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एम्प्लॉय आया और विदाउट गिविंग एन इंडक्शन ट्रेनिंग एम्प्लॉय को टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बगैर एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो दे दी गई है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम करना है। बट द एम्प्लॉय एक्चुअली नॉट अवेयर विद द मेन एम। किसी भी फर्म में जाएं और अगर एम्प्लॉय से उस फर्म का एम पूछें that you are working with that organization, what will be the main aim of this organization that you are working with, अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं जानता, उसको मकसद का पता ही नहीं, फर्म किस मकसद, किस ऑब्जेक्टिव, किस टारगेट पे, किस गोल पे काम कर रही, then it means that the responsibilities are imposed to that employee. एम्प्लॉय को सबसे पहले बिजनेस के मेन एम का पता होना चाहिए, किस मकसद के लिए कस्टमर को सर्व करना उसका मकसद है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज है, क्वालिटी मेन एम है। जैसे कि डॉलेंस एक ऑब्जेक्टिव अपनी मिशन स्टेटमेंट में बताता है, डॉलेंस रिलायबिलिटी उसका मेन जो एम है। बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को आपके मेन एम्प्लॉयज़ को आपके मेन एम का मकसद का पता होना चाहिए। And the process of MBO is designed to fulfill that objective, to achieve that objective, to describe the main aim and objectives in front of the people, in front of the employees who are working within the organization. So these objectives should be discussed and agreed at each level. Then it can be a very effective way of assigning authority, giving the responsibility and the motivating staff. अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई, हमने एएस में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई अप्रोच पढ़ी थी, और थ्योरी एक्स बेसिकली इम्पोजिशन थी जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोज किया गया विदाउट डेमोन्स्ट्रेटिंग द एम, जबकि थ्योरी वाई जो कि आज हम रिपीट कर रहे हैं इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन किया जा रहा है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जैसे कि हर इंसान के फर्म में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल टारगेट है, कुछ सेल्स का कोई टारगेट है या कोई एडवर्टाइजमेंट का जो टारगेट है। प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो प्रोडक्शन का उसके पास टारगेट है। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर, जिस डिवीजन में वो काम कर रहा है जिस डिवीजन का जो ऑब्जेक्टिव है, एंड द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव which is useful for the whole organization. These are designed for the whole complete organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की 100 ब्रांचेज हैं तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स उस 100 ब्रांचेज में के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया जा सकता है, बट द एम इज स्टिल सिमिलर फॉर सेवरल ईयर्स। एम इसलिए नहीं डिज़ाइन किए जाते कि उनको चेंज किया जाए बार बार, बट एक वक्त आता है when the business organization feels that the aim has been achieved, then this is the time to update the aim. एम को चेंज नहीं किया जाता, एम को अपडेट किया जा सकता है आफ्टर सर्टेन टाइम पे। 10 साल 20 साल के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसका एम एमबीओ जो है वो अचीव हो चुका है। नाउ दिस इज द टाइम टू add extensions, add new aims, add new goals and objectives. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को डिफाइन किया गया, एक डायग्राम डिस्क्राइब की गई है एमबीओ के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को डिफाइन किया गया, एम्प्लॉयज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया गया, एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। Process of monitoring is an ongoing process in which the objectives and aims are continuously checked, whether the business is on target, whether the employees are working are on target or not, in case of overperformance or underperformance। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन स्टेप नंबर 4 है, जिसमें एम्प्लॉय को ये देखा जाता है कि वो ऑन टारगेट हैं, और अगर वो टारगेट पे नहीं हैं तो क्या, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू टेक दैट द एम्प्लॉयज शुड रीच टू दैट टारगेट्स। प्रोवाइडिंग द फीडबैक, फीडबैक किसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। Step number 5, particularly the feedback is given to the board of director actually, who defines, who established the targets. Feedback उनको provide किया जाएगा।
And now this is the time to appraise the performance. Appraisal, performance appraisal, appraisal of achieving objective. ये पॉइंट डिस्क्राइब करेगा कि किस हद तक बिजनेस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो डिस्क्राइब किए वो अचीव किया. एंड दिस इज ऑनगोइंग. हर साल एमबीओ को डिक्लेयर किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाएगा और फिर परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा. किसी साल ये रिजल्ट आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स जो डिज़ाइन किए गए थे वो अचीव हो गए. किसी साल हो सकता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स में को उस तरीके से ना अचीव किया जा सके. अंडर परफॉर्मेंस या ओवर परफॉर्मेंस या बैलेंस परफॉर्मेंस का आंसर जो है वो आ सकता है बिजनेस के पास. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. Possible benefits of MBO. This is a system, this is a process in which objectives has been described, demonstrated to the people, to the employees, and these people should be agreed. These objectives should be discussed with the employees on each level. So the employees and like the subordinates will exactly know what they have to perform within the organization. They know their responsibilities very well, and they prioritize their time and they prioritize their tasks and responsibilities. It means that MBO is just like describing, writing a job description as well, but the job description in that way along with the aims and objectives. Writing only the job description is only the imposition of job, but writing the job description along with the aims and objective is actually the way of MBO, implementing the MBO. The third benefit of MBO, rather than using the concept of imposition, every department, every branch is working for the same objective due to a common objective established, and that what we call the MBO. हर ब्रांच का ऑब्जेक्टिव और एम हर डिपार्टमेंट का क्या सेम होना चाहिए? यस. एवरी ब्रांच, हर ब्रांच वो प्रोविंसेस में है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव और एम जो है वो सेम होगा. वर्किंग में स्ट्रैटेजी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में objective should be same with the help of MBA. That is the main benefit, main advantage of implementing the process of management by objective within the firm. It is acting as a control device, means start objectives at the start of the year objectives को describe किया जाता है, and at the end of the year इन objectives को अप्रेस कर लिया जाता है कि किस हद तक आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया और किन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रहे. सक्सेस और फेलियर की कैलकुलेशन इज कॉल्ड कंट्रोलिंग डिवाइस ऑफ एमबीए. कंट्रोल एंड रिव्यू प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड रिव्यू. एट द एंड ऑफ द टाइम आप रिव्यू करते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम आप ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करते हैं, एंड द मिड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस. So the next topic after the MBO is the relationship between labor and manager. Labor manager, labor management relationship. There are three groups of people within the organization. One group is named as labor, employees, and the trade union. The other group is called the management team, board of directors, and the management team. And the third group is called HR department. Why the HR department is separately treated? Because of the neutral behavior that support both of them. एचआर को इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि वो सिर्फ बिजनेस को सपोर्ट करेगा. द मेन पर्पस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इज टू acting as a neutral group, neutral party, acting as a conciliator, arbitrator. Acting as a conciliator means
दोनों पार्टीज के दरम्यान में जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एचआर डिपार्टमेंट की होगी, और ये दोनों को सपोर्ट करेगा। ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। In any business with owners and the employees, there are always likely to be the potential conflict. What kind of potential conflict? The conflict of rights, the conflict of financial rewards, the conflict of non-financial reward, conflict of opinions, interest between owners and the, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं उसमें इन दो ग्रुप ऑफ पीपल के दरम्यान में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा, बिकॉज जो ऑनर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिटेबिलिटी, वाइल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली वो कुछ सैलरी फाइनेंशियल रिवॉर्ड से रिलेटेड हैं। वो अपने वर्किंग आवर्स को शॉर्ट करवाना चाहते हैं एंड दे आर ऑल्सो डिमांडेड सम नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, जिसमें वर्किंग कंडीशंस हैं, इसमें रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करवाना चाहते हैं वो। जैसे आजकल डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेक्शन किट्स और कुछ क्लोथिंग इक्विपमेंट डिमांड कर रहे हैं जो कि उनका राइट है। तो ये कन्फ्लिक्ट, दैट देयर इज़ अ क्लियर स्कोप फॉर कन्फ्लिक्ट है, a clear scope of clashes between two parties। अब इन पार्टीज को सबसे पहले तो इश्यूज को देख लेते हैं। जो फॉर्मल इश्यूज आपके सिलेबस में उठाए हैं वो इश्यूज क्या हैं? वो इशू जो मेन बताया गया है आपके सिलेबस में वो दो हैं बेसिकली, जिसमें पहला है रिलोकेशन और परचेजिंग इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। बाइंग न्यू मशीन एक इशू है। वो इशू क्या है, क्यों है, क्या ऐसी रीज़न है कि ये डिस्प्यूट का बायस बन रहा है? जो टेक्नोलॉजी है इसमें ट्रेड यूनियन की का ये ओपिनियन है कि ये लीड कर सकती है जॉब लॉसेस को। नई मशीन्स आएंगी, हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना रहे, सो स्टाफ जो ऑलरेडी है उसको रीट्रेन करना पड़े ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, बिजनेस ट्रेनिंग के बगैर ही नई मशीन ले आए, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। और बिजनेस को क्योंकि मल्टी टैलेंटेड स्टाफ चाहिए तो वो हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर करे। तो ड्यू टू फियर ऑफ रिडेंडेंसी जो ट्रेड यूनियन है उसका ये इशू है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी के हक में नहीं है। But the management view change is required because the market is demanded the new technology. Customer also want the new technology. Banking system में टिकट सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है वो कस्टमर्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा डिस्ट्रप्टिव है, लेकिन आज की ज़रूरत है। इसी तरीके से बहुत सारी बार कोड रीडिंग है शॉप्स के अंदर, थंब की जो इम्प्रेशन है ये आजकल बहुत ज़रूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आना, कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज़ का उसको अडॉप्ट करना, बिजनेस को उसको बाय करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये दोनों इश्यूज हैं, ये कन्फ्लिक्ट की रीज़न बनती नज़र आ रही है न्यू टेक्नोलॉजी। एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न, एज यू ऑलरेडी नो, द वर्किंग कंडीशन। एंड वर्किंग कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वर्किंग कंडीशन में रूम टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स हैं, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसमें चाइल्ड केयर बेनिफिट्स हैं, पेंशन्स हैं, ब्रेक्स हैं, फूड है आपके पास, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज हैं। वर्किंग कंडीशंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इवन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी वर्किंग कंडीशंस के अंदर आ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, मैनेजमेंट का व्यू ये है कि ये उनके बिजनेस की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटी और proper clothing facility or maintaining the normal room temperature can add to business cost। ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। जबकि एम्प्लॉय का व्यू है कि ये वर्किंग कंडीशंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली
जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे वर्क कंडीशंस थोड़ी वर्स्ट हैं, जैसे आयरन स्मेल्टिंग फैक्ट्रीज हैं, कार प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, जहाँ के टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होता है। अनदर एग्जांपल, पेट्रोल फ्यूल स्टेशन जो हैं, इसमें जो एम्प्लॉय का जो ड्रेस है दैट शुड बी फायर प्रूफ। तो इस तरह की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिमांड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, दिस इज़ द डिमांड ऑफ ट्रेड यूनियन to to get all these required health facilities from the organizations to protect the life of employee, to increase the safety levels. So ये कन्फ्लिक्ट जो है, तो दो कन्फ्लिक्ट हमेशा से रहेंगे, एक कन्फ्लिक्ट रिलोकेशन और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एक कंडीशंस, एक इशू जो है वो है वर्किंग कंडीशंस और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के हवाले से। अब सो there is a time to manage these issues. In your syllabus, we will learn about three main ways, techniques to resolve these issues. जैसे कि पहला आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, the first way to tackle the labor management problems is the autocratic management style, which is take or leave approach. Autocratic leadership style is already, आप AS में इसको study कर चुके हैं, in which managers give the instructions to the employees, and employees do not have the right to discuss, to participate in decision making process. So here the same autocratic management style is same. वो economies जिनमें recession है, जैसे current situation जो चल रही है इसमें भी कुछ economies recession, रिसेशन मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बहुत कम है, एंड द बिजनेस इज नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एज प्रीवियसली। सो उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करने की, तो वो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। वो बिजनेसेस जो लॉस में है, या जो इकोनॉमिक रिसेशन में है, या जो उनकी कोई वो businesses जो कोई the producing that kind of product which are not actually uh, according to the industry, according to the market, outdated product produce कर रहे हैं और नई product अब वो उनके पास R&D नहीं है। So they, if the worker object the over the financial or the non-financial reward, then the attitude, the behavior of the manager is to dismiss the people, the employees. वो लोग जो आपकी वर्किंग कंडीशन या फाइनेंशियल रिवॉर्ड से हैप्पी नहीं है, then the attitude of the business is to dismiss. No other option is. जी, first था autocratic leadership style, and the second one is collective bargaining. This is good as compared to the previous method because it highlight the role of HR department now. फर्स्ट में ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट कि सर ऑटोक्रेटिक में एचआर का रोल क्या, सो देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट in that leadership style, that management style. No concept of, no role, no responsibility, no working of human resource department in the first approach. The second approach, that is called the collective bargaining. Collective bargaining means the trade union, the formation of trade union is allowed. The trade union and the owner involved in a joint decision making along with the participation of HR department. Trade union collective, सबसे पहले बात तो ये individual negotiation is not acceptable. One worker going on strike is not acceptable because it, it does not have any meaning. One worker fight for the financial or non-financial. The worker should collect themselves. Collective bargaining is important. Collective bargaining means workers are joined together and establish a union, establishing a group that is called a trade union, and the representative of trade union
goes to the goes to the board of directors for a meeting, a joint discussion between two parties, trade union and the owners group, the board of directors, and इन दोनों के दरमियान में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एचआर डिपार्टमेंट, अ न्यूट्रल personality is also there, the head of the representative of HR. The main purpose of this the main purpose of this meeting is to अराइव अ म्यूचुअल डिसीजन। इसमें कुछ बातें ट्रेड यूनियन की मानी जाएं, कुछ बातें ऑनर की मानी जाएं, अलॉन्ग विद द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो दिस इज द whole about the collective bargaining, in which the union leader mutually negotiate over financial and the non-financial rewards with the group of owners, like in limited company we can call the board of directors. सो क्या डिस्कस किया जाता है इसमें? वर्किंग कंडीशंस आ सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आ सकते हैं, इसमें हॉलीडे एंटाइटलमेंट्स आ सकती हैं, इसमें मेडिकल फैसिलिटी के लिए बार्गेन किए जा सकते हैं। जैसे समर सीज़न में, क्योंकि गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसमें आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए फ़ाइट किया जा सकता है। कलेक्टिव निगोशिएशन इज़ द नॉर्म, कलेक्टिव निगोशिएशन ही एक्सेप्टेबल है, और इसी का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा समझा जाता है। क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर ट्रेड यूनियन का की जो बातें हैं अगर ना मानी जाएं? तो इसमें मुख्तलिफ एक्शंस हैं विच आर टेकन बाय द हेड ऑफ द ट्रेड यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निगोशिएशन फर्स्ट स्टेप है, जिसमें निगोशिएट किया जाता है। अगर निगोशिएशन का इम्पैक्ट ना मिले तो उसके बाद मुख्तलिफ एक्शंस हैं, जिसमें पिकेटिंग, बैनर्स वगैरह, उसके बाद गो स्लो की ऑप्शन है कि काम तो किया जाता है लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रेड यूनियन स्लो कर देती है। उसके बाद भी अगर बात ना मानी जाए तो फिर लास्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है जिसे स्ट्राइक के नाम से, स्ट्राइक एंड इंडस्ट्रियल एक्शंस टेकन बाय द ट्रेड यूनियन, विच इज़ एक्चुअली कॉज डिस्ट्रप्शन फॉर द फर्म, डिस्ट्रप्शन फॉर द इकोनॉमी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर डिस्ट्रप्शन आती है तो ना सिर्फ बिजनेस इससे इम्पैक्ट लेता है, बल्कि जो इकोनॉमी है वो भी इम्पैक्ट आ सकता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, the role of HR, the role of trade union, and the role of honor is should be very clear. The third one, the third one shows the actual role of HR department. Rather इसके कि एम्प्लॉई अपनी प्रॉब्लम्स बताए, इट इज़ द एचआर को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि वो एम्प्लॉय के बताने से पहले ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स को, उसकी जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करे, उसके रूम टेम्परेचर के लिए मैनेज करे, उसको उसको जितनी भी उसकी रिक्वायर्ड नीड्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, उनको खुद से मैनेज करे. So the coordination between labor management in the recognition that the successful business competitive ultimately beneficial to the both parties, for owners and the workers. It is accepted that the labor management relation that is based on mutual respect, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, that could be a competitive business, productive business, and able to achieve the profitability, growth, the brand, the customer satisfaction, the quality of goods and service. एम्प्लॉई को वो सारी चीज़ें अगर आप खुद से प्रोवाइड करते हैं जो कि उसकी डिमांड है, देन ये बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली, दिस शोज द ट्रू रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परफेक्ट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपने इस पॉलिसी में आपने स्टडी किया, जिसमें आपने ये देखा है कि एचआर डिपार्टमेंट उन सारी चीज़ों को पहले से ही ऑर्गेनाइज करेगा, या अदर इसके कि ट्रेड यूनियन के एक्शन का वो इंतज़ार करे। तो दिस इज़ द ट्रू पॉलिसी, दिस इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक
एमबीओ हमने स्टार्ट किया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव्स और एम को डिस्क्राइब किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस किया जाएगा, और थ्योरी वाई के अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे। एक डायग्राम एमबीओ के लिए, एमबीओ का प्रोसेस, इवैल्यूएशन, डिफाइनिंग से लेके इवैल्यूएशन तक, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ, एंड टॉपिक नंबर 6 विच इज़ लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। इसमें बताया गया कि हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा ओपिनियन और इंटरेस्ट का। इस इश्यूज को डिस्कस किया गया जिसमें टेक्नोलॉजी एक इशू है, और वर्किंग कंडीशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का इशू है, मैनेजमेंट का व्यू और एम्प्लॉय का व्यू। एंड इसको मैनेज करने के, रिजॉल्व करने के तीन तरीके, जिसमें सबसे पहला ऑटोक्रेटिक था, टेक और लीव, काम करें या जाएं, या कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियन हैज़ द राइट टू कलेक्टिव has a right to negotiate collectively with the management staff, management people. And the third one is the coordination policy. HR department coordinates, develops a coordination policy between the owners and employees. Business should himself responsible for implementing all of the required issues, all of the required things which are actually needed by the employees, whether वो financial है या वो non financial. Thank you जी, अल्लाह हाफिज.